Good evening, students. We were studying group 2 elements and we studied the physical properties of group 2 elements. Now we are coming to the chemical properties. Chemical properties of group 2 elements. You know that the chemical properties of metals depends upon the ionization energy. क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सो जो मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतनी उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कैटायन बनाने की, और उतना ज़्यादा रिएक्टिव वो होगा। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना लार्जर साइज़ होगा एटम का उतना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा होगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स जो होगा बहुत वीक होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, और यू कैन से सच एटम, सच मेटल, सच एलिमेंट्स आर reactive, highly reactive elements. Okay, so if you compare the chemical reactivity of group 1 and group 2 elements, we find that group 1 element are larger in size and they have to lose only one electron to get the octet. So group 1 elements are the most reactive metals. They have to lose only one electron to get their octet, and group 1 elements have the largest size in their respective period. So they are the most reactive metals, group 1 elements: sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Group 2 elements are also highly reactive metals because their size is also quite large. Of course, the size is slightly smaller than group 1 element because पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जब बढ़ते हैं तो साइज डिक्रीजेस. सो साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट. So due to this reason, the group 2 elements are less electropositive. They have to lose 2 electrons to get their octet because they are all having valence electrons too. So they have to lose 2 electrons to get the octet, and number 2, the size of the group 2 elements is smaller than the size of group 1 element. And that makes them, these two factors make them little less reactive than group 1 elements. So group 2 elements are also highly reactive, highly electropositive metals. But compared to group 1, their reactivity is little less. Now come to the kind of compounds they form. Number 1, hydrides. Like group 1 element, group 2 elements also, they form hydrides by direct combination of metal with hydrogen, except beryllium. Beryllium hydride बेरिलियम और हाइड्रोजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है, इनडायरेक्टली हमें बनाना पड़ता है. मगर बाकी जितने भी मेटल्स हैं दे कंबाइन विद, जैसे Ca है प्लस H2, इट विल फॉर्म CaH2. Direct combination Mg plus H2 gives MgH2, direct combination. But Be, beryllium hydride, is formed from beryllium chloride by reduction with lithium aluminium hydride. जब बेरिलियम क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम रिएक्ट कराते हैं, देन वी गेट BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3. These compounds are formed. So beryllium hydride is formed indirectly, not directly. And these hydrides, they are covalent in nature. मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, ये दो जो ऊपर के जो है MgH2, BeH2, ये कोवलेंट है. मगर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हाइड्राइड्स बिकम मोर एंड मोर आयनिक होते हैं. बाकी हाइड्राइड्स आयोनिक है. एंड दीज हाइड्राइड्स दे हैव हाई रिएक्टिविटी विथ वाटर, लाइक CaH2. इट डिजॉल्व्स इन वाटर रेडिली, फॉर्मिंग CaOH होल ट्वाइस एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस. ये रिएक्शन जस्ट अल्कली मेटल्स की तरह है. MgH2 combines with water and forms MgOH whole twice and liberates hydrogen gas. So these hydrides
are strong reducing agents also. But of course, the reducing strength is also little less than group 1 elements. Now come to oxides. Oxides. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं ये जो हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं बर्न करने पे। कारण क्या है कि ये पहले से ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन करके इनके ऊपर एक लेयर बन जाता है BeO एंड MgO का एक लेयर इनके ऊपर बना रहता है, जिसकी वजह से ये इनर्ट हो जाते हैं, ये बर्न नहीं करते हैं, फिर ये इनर्ट हो जाते हैं। मगर बाकी जो तुम्हारे मेटल्स हैं दे रिएक्ट विथ oxygen, they burn in oxygen and form their oxides like Ca plus O2 gives CaO, Ba plus O2। अब ये है कि CaO तक तो ये मोनोऑक्साइड बनाते हैं, मगर बेरियम जो है ये परऑक्साइड बनाता है BaO2। एंड बेरियम के नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं वो जो है ये बनाते हैं तुम्हारे परऑक्साइड। स्ट्रोंशियम, बेरियम ये सब परऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम तक ये नॉर्मल ऑक्साइड दैट इज़ मोनोऑक्साइड बनाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट ऑक्साइड्स। नाउ कम टू दिस characteristics of oxide. These oxides are quite stable. BeO जो होता है BeO ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बाकी जो ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं? बेसिक। केवल पहला जो मेटल है बेरिलियम उसका ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक होता है, ये बेसिक है। अब आ जाओ हाइड्रोक्साइड्स पे। नाउ वी विल स्टडी हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स अब कैसे बना सकते हैं? हाइड्रोक्साइड्स मेटल को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनते हैं, या फिर मेटल ऑक्साइड को डिज़ोल्व करते हैं तब भी हाइड्रोक्साइड बनते हैं। जैसे CaO को जब हम H2O में डिज़ोल्व करते हैं तो वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgO plus H2O it forms MgOH whole twice, magnesium hydroxide। अब ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ, ये सारे बेसेस हैं, ये सभी बेसेस हैं। अब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेसिक स्ट्रेंथ जो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मीन्स जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाती है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बेस बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल डिक्रीजेज एंड सो द मेटल एंड OH बॉन्ड, ये मेटल एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इट बिकम्स वीकर एंड वीकर, हैंस द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। जितना ज़्यादा मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक होगा उतना ज़्यादा वो इजीली हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो नीचे जाते हैं तो ये साइज़ इसकी इंक्रीज़ करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करता है मेटल का, जिसकी वजह से मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक और वीक होते चला जाता है। अब बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ती चली जाती है। दिस इज़ अबाउट हाइड्रोक्साइड्स एंड सॉल्युबिलिटी। अगर आप देखिएगा तो जो ऊपर के जो हैं कैल्शियम तुम्हारे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की भी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पैरिंगली सॉल्युबल है, मगर जैसे जैसे नीचे जाते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है।
सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा सॉल्युबल होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल। नाउ कम टू द रिएक्शन विथ वाटर। These metals react with water forming hydroxides. जैसे Ca plus H2O, it reacts with water forming hydroxide and releasing hydrogen gas, H2 gas. Magnesium also combines with water, हालांकि बहुत slow है इसका reaction, मगर it combines with water forming MgO plus MgOH whole twice plus H2। इस तरीके से रिएक्शन होता है। ना देन कम टू कार्बोनेट्स हम कैसे बनाते हैं? कोई भी मेटल के क्लोराइड हो या कोई भी सॉल्ट हो, उसको जब हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो वी गेट द कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो कैल्शियम क्लोराइड को जब हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के अलावा कोई और भी सॉल्ट आप ले सकते हो, वी गेट CaCO3 प्लस NaCl। अगर जो कैल्शियम सल्फेट ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्ट्स विद Na2CO3 एंड वी गेट CaCO3, ये डबल डिकम्पोजिशन है, प्लस Na2SO4। सो इस तरह से कार्बोनेट्स बनाए जाते हैं। ये जो कार्बोनेट्स हैं दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ये कार्बोनेट्स जो हैं जैसे CaCO3 ऑन हीट करने पे ये डिकम्पोज कर जाता है टू गिव CaO प्लस CO2। MgCO3 डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग गिविंग MgO प्लस CO2। देन कम टू सल्फेट्स, दे ऑल्सो फॉर्म सल्फेट्स। सल्फेट्स के लिए फिर कोई भी मेटल ले लो या मेटल का सॉल्ट ले लो और उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करोगे तो आपको सल्फेट मिल जाएगा। जैसे Ca को अगर H2SO4 से हम ट्रीट करेंगे तो CaSO4 प्लस H2 बनेगा, या फिर कैल्शियम का कोई और कंपाउंड ले लो CaO प्लस H2SO4, वी विल गेट CaSO4 प्लस H2O। CaCl2 ले लो, CaCl2 plus H2SO4, we will get CaSO4 plus HCl। तो इस तरह से कोई भी सॉल्ट हम लें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, इसको H2SO4 से ट्रीट करें, देन ऑल्सो वी विल बी गेटिंग CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। सो इस तरह से सल्फेट्स बनते हैं। देन कम टू हेलाइड्स। Halides are also obtained by direct combination. The direct combination metal with halogen, कोई भी मेटल ले लो उसको हैलोजन से रिएक्ट करो, Cl2, it forms MgCl2। Ca plus Cl2, it gives CaCl2। या फिर अगेन कोई भी सॉल्ट लो उसको HCl एसिड से ट्रीट कर दो, CaO plus HCl, we will get CaCl2 plus H2O। MgNO3 whole twice, कोई भी सॉल्ट ले लिया हमने, उसको HCl से ट्रीट किया एंड वी विल गेट MgCl2 प्लस HNO3। बेस आप ले लो, कोई बेस ले लो जैसे CaOH होल ट्वाइस बेस, इसको HCl एसिड से ट्रीट करो और वी विल बी गेटिंग CaCl2 प्लस H2O। सो इस तरह से हैलाइड्स बनते हैं। सो दिस इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आगे चल कर के तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट पे आएंगे। अब एस ब्लॉक एलिमेंट में अब ये देखो
जैसे हमने ग्रुप 1 में पढ़ा था कि द फर्स्ट एलिमेंट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, लाइक लिथियम डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। ये ग्रुप 2 में भी होता है। बेरिलियम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, इट डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। सो ये क्या क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस ऑफ बेरिलियम फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, अदर एलिमेंट्स, कई कई सारे डिफरेंसेस हैं। एंड डिफरेंसेस तो हम पढ़ेंगे, मगर डिफरेंसेस क्या, रीज़न फिर वही है। रीज़न क्या है? नंबर 1, स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे स्मॉल होता है बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट। फिर इसकी नंबर 1 प्रॉपर रीज़न है। नंबर 2 रीज़न है वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन स्मॉल साइज होने की वजह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत हाई होती है, जबकि बाकी एलिमेंट्स की कम है। हाई पोलराइजिंग पावर, जिसकी वजह से हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से ये नॉर्मली इसके कंपाउंड्स जो होते हैं कोवलेंट नेचर के होते हैं। और फिर चौथा एक और है रीज़न, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये सब रीजंस है जिसकी वजह से ग्रुप के बाकी एलिमेंट से बेरिलियम डिफर कर जाता है। अब डिफरेंसेस हम कैसे, हम बेरिलियम और उसके बाद का एलिमेंट मैग्नीशियम, इन दोनों का ही डिफरेंस देख लें। डिफरेंसेस बिटवीन, जो मैग्नीशियम से डिफरेंस होगा वो बाकी सारे एलिमेंट से वही डिफरेंस होगा। बिटवीन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बेरिलियम के जस्ट नीचे है। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस? नंबर 1, बेरिलियम इज लाइटर, very lighter than magnesium. Melting point and boiling point is quite high melting point and boiling point of beryllium than magnesium. Beryllium does not react with water, beryllium does not react with water even at high temperature. Magnesium reacts with boiling water. मैग्नीशियम कम से कम बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है, मगर बेरिलियम इवन बॉइलिंग वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता। देन कम टू द we will study the rest. Okay, rest of the things we will study next day. All right.